Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to lecture number 12 of Introduction to Management MGT 101. Let's see what we have discussed in the last lecture. Remember, in lecture 11 we discussed topics from chapter number 5, which were managerial ethics, moral development, factors that affect employee ethics, and finally in the last part of the lecture we discussed ethics from international context. And at that time we discussed few of the principles that have been presented by the United Nations regarding labor, environment and other issues. So let's see what we are going to discuss in today's lecture. Today's lecture is lecture number 12. Today we'll be continuing with the remaining topics of chapter number 5. And the topics that we'll be covering as of today are how managers can improve ethics in organization, and then we will discuss that how is it about being an ethical leader. So in today's lecture the first emphasis will be the role of a manager in bringing some improvement within the organization as far as ethics are concerned. And we will also be looking at what are the code of ethics and other things. So let's start. Chapter 5, remember, is about social responsibility and managerial ethics. And social responsibility, remember, is something which is a little bit more than the social obligation, where a manager thinks that for his or her organization it is better to involve the managers regarding some awareness about societal requirements or issues which affects not only the organization but society at large also. And then we described that ethics are those things which are acceptable in the organization and these are the right things to do. And then we define that unethical is something which is not acceptable in the organization in general and to some extent also at large in the society. And remember, we discussed an important concept where we said that whenever there is an ethical dilemma, meaning any manager is involved in issues where the manager is not sure whether his or her decision will be ethical or unethical, so every manager first refers to the moral development, meaning the definition by the manager itself. And remember, we said that in moral development every manager passes through 3 different stages. The first one is pre-conventional, then we have conventional, and then we have principal level. So when the manager passes through all of these stages, then he first of all defines his or her own definition, and then he looks at the different contributors, which are in fact the moderators, which tends to define the relationship between the issue at hand and the final decision being determined as ethical or unethical. And these were the moderators, which are the structural variables, the role of the organization culture and intensity of the issue and other things. So now let's start with chapter number 5, and today we will be focusing on ethics and the role of a manager. So the first topic for today is how managers can improve ethics in the organization. Now whenever it's about discussing the role of a manager in improvement of ethics in the organization, the whole thing can start from the point number 1 being shown on the slide, and it is with the hiring of people or individuals which have high ethical standards. So remember, हमने एक जगह पे पहले भी ये कहा था कि जब भी हम किसी मैनेजर को हायर करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए
कि whether that manager is going to fit the organization as far as the culture is concerned or as far as ethics are concerned. So that is the point number one, that whenever we will be hiring someone, we need to make sure that the manager is being hired who is acceptable and who accepts rather the ethics of the organization at large. So the first point is we need to hire individuals who have high ethical standards, and that can be done during the interview stage, or maybe we can give that person some kind of ethics related questions in the written exam or selection exam. So जब भी आप किसी को हायर कर रहे होते हो, so the first thing is we need to make sure that the person meets the high ethical standards. Point 2 is that we need to establish a code of ethics and decision rules. You see, code of ethics are written rules. They are described rules, and they are mentioned in different organizational documents such as the rules and regulation book, or maybe the orientation book which you give to a new manager which is being hired. So time to time it is necessary कि हम अपने managers को कोड ऑफ एथिक्स, जो एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्ड किया है, जो रिटन है, उसके मुतालिक उनको मैसेजेस कन्वे करते रहें. दे मस्ट बी डिस्प्लेड इन अ विजिबल प्लेस, मे बी ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल नोटिस बोर्ड, या हम उससे रिलेटेड कोई भी जो इश्यूज़ हैं उनको मैनेजर्स तक कन्वे करें, सो दैट व्हेन एवर दे आर टेकिंग सम डिसीजन, सो दे आर अबाइडिंग बाय दोज कोड ऑफ एथिक्स और रूल्स. सो how a manager can improve ethics in the organization? Point number 2 is that whenever he or she has to refer for make some decision, then that manager is supposed to refer to the code of ethics and any other related rules which are there. Third point is lead by example. It's always true. Every manager is supposed to show by example that he or she is maintaining high ethical values. सो आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हमेशा आपको देखेंगे कि आपने इस चीज़ के ऊपर क्या डिसीजन लिया, और दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज लीडिंग बाय एग्जांपल. सो एवरी मैनेजर सेट्स एन एग्जांपल फॉर हिज और हर सबॉर्डिनेट्स, एंड दैट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस. आप हमेशा अपने सुपीरियर को या अपने घर में बड़े को देखते हो कि उसने क्या काम किया है, और इसी वजह से कहते हैं कि बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि जो भी वो काम करें वो सही करें, बिकॉज फिर छोटे जो होंगे घर में, जो उनसे कम एज में होंगे या रैंक में होंगे, वो फिर उसी चीज़ को एक बेस बना लेते हैं कि जी सुपीरियर ने अगर ये डिसीजन किया है तो मुझे भी यही इसी तरह के डिसीजंस करने चाहिए. सो वी नाउ से दैट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट that in order to improve the ethics in the organization, managers needs to set the examples, practical examples. सिर्फ बातचीत में नहीं, बल्कि जब भी वो कोई डिसीजन ले उसको ये मेक श्योर करना चाहिए कि सिर्फ ये डिसीजन जो है वो अभी वक्ती तौर पे लोगों के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले बाकी लोग भी जो हैं वो इसको एज अ पैरामीटर लेके चलेंगे, इसको स्टैंडर्ड लेके चलेंगे. सो द थर्ड पॉइंट सेज वी नीड टू लीड बाय एग्जाम्पल. हमें हमेशा ऐसे काम करने चाहिए कि जो आने वालों के लिए, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं या जो हमारे जूनियर्स हैं, उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करें. द नेक्स्ट पॉइंट इज वी नीड टू सेट रियलिस्टिक जॉब गोल्स एंड इंक्लूड एथिक्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल्स. देखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप गोल्स की बात करते हैं और फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात आती है, तो लेट्स सी, मैंने शायद पहले भी आपसे एक जगह पे जिक्र किया कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है. देखें, आप जब भी किसी मैनेजर को हायर करते हैं, किसी भी जॉब के लिए हायर करते हैं, उसको आपको ये बताना होता है थ्रू हिज और हर जॉब डिस्क्रिप्शन कि भाई ये आपने काम करने हैं और हम आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करेंगे इन चीज़ों के अगेंस्ट जो हमने काम आपको बताए हैं. अगर आप सेटिस्फैक्ट्री काम करेंगे तो ठीक है, अगर आप मोर देन सेटिस्फैक्ट्री करेंगे तो चांसेस हैं कि हम आपको रिवॉर्ड भी दें. सो बट जो गोल्स हम उस मैनेजर के लिए सेट कर रहे हैं, दे मस्ट बी रियलिस्टिक. ये नहीं है कि हमको उसको ऐसा काम करने के लिए कह दें जो हमें पता है कि उसके लिए ना उसके पास नॉलेज है, ना स्किल्स हैं,
ना उसके लिए पास कोई टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट है। सो वी नीड टू सेट रियलिस्टिक जॉब गोल्स, और अगर हम चाहते हैं कि उसको कोई टफ काम दे तो वी नीड टू मेक श्योर कि हमने उसको प्रॉपर ट्रेनिंग उससे रिलेटेड दी है कि नहीं दी है। सो वी नीड टू मेक श्योर, द पॉइंट नंबर 4 says we need to make sure that all the goals which have been set before that manager are realistic, are practical, are achievable, and at the same time we need to evaluate that person during performance appraisal phase from ethics point of view also, कि इसने जितना अरसा यहाँ गुजारा है उसमें उसने जो डिसीजंस लिए हैं या जिस तरह उसका लोगों के साथ बर्ताव है वो एथिकल था कि अनएथिकल था। सो एथिक्स की वेटेज होनी चाहिए। द पॉइंट इज कि एथिक्स को हमें एक ड्यू वेटेज देना चाहिए कि जब भी हम उसकी अप्रेजल करें वी नीड टू गिव अ ड्यू वेटेज टू दैट टू एथिक्स एज फार एज परफॉर्मेंस अप्रेजल इज कंसर्न्ड, एंड वी नीड टू मेक श्योर कि हम उसके लिए अनरियलिस्टिक जॉब गोल्स ना रखें, बिकॉज इफ द जॉब गोल्स विल बी अनरियलिस्टिक देन इट मे बी अ चांस कि वो हो सकता है कि वो कोई उन गोल्स को अचीव करने के लिए अनएथिकल वे को यूज़ कर ले। जाहिर सी बात है, अगर कोई मैनेजर जो है उसके पास स्किल्स नहीं है, वो इतना कैपेबल नहीं है या उसके पास ट्रेनिंग नहीं है, और फिर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये काम करके दिखाए, तो फिर हो सकता है वो उसमें कोई कहीं से वो कोई चीटिंग करने की कोशिश करे, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस यूज़ करे, क्योंकि वो चाहता होगा कि ऑब्वियसली हर बंदा चाहता है कि उसकी परफॉर्मेंस की जो अप्रेजल है वो सही हो। सो गोल्स शुड बी रियलिस्टिक एंड एट द सेम टाइम एथिक्स शुड बी गिवन अ ड्यू वेटेज व्हाइल द अप्रेजल इज बीइंग डन। पॉइंट नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अबाउट एथिक्स ट्रेनिंग। यू सी ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा ट्रेनिंग्स की बात की जाती है, एंड लेट मी नाउ गिव यू अ लिटिल बिट मोर ऑन दिस। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दो वर्ड्स हैं जो अक्सर आप सुनते हैं कि जी साथ साथ बोले जाते हैं, बट ट्रेनिंग इज समथिंग विच हेल्प्स यू टू डू योर करंट जॉब इन अ बेटर मैनर। ट्रेनिंग आपकी जॉब से रिलेटेड होती है, करंट जॉब से रिलेटेड होती है, और इसका काम आपको करंट जॉब को बेहतर तरीके से परफॉर्म करने में हेल्प करना है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग, बट दैट इज इट इज मोर inclined towards giving you trainings for your future career, for your development। कि आप अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भी जाते हैं तो आपके पास ऐसे एक्स्ट्रा स्किल्स हों कि जो आपको कहीं और जॉब या करियर परस्यू करने में हेल्प करे। सो ट्रेनिंग हमें हर चीज़ की दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑन जॉब भी होती है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग मिल रही होती है आपको, बट वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम एथिक्स रिलेटेड इश्यूज़ पे भी अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्क फोर्स को ट्रेनिंग देते रहें और उनको बताते रहें कि ये एथिकली गुड है, ये एथिकली साउंड है, इट्स नॉट अनएथिकल, बट ये अनएथिकल इश्यूज़ हैं, आपको अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो आपको क्या करना है, और दैट दीज थिंग्स नीड्स टू बी देयर। सो व्हेनेवर यू विल बी प्रोवाइडेड विद यू आर प्रोवाइडिंग रादर एथिक्स ट्रेनिंग, तो आप और आपके वर्कर्स, आपके सबॉर्डिनेट्स जो होंगे वो कभी भी अनएथिकल डिसीजन की तरफ नहीं जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 इज कंडक्ट इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट्स। सोशल ऑडिट्स क्या होता है? देखें, आपने ऑडिटिंग के मतलब सुना होगा, अकाउंट्स में एक कंपोनेंट होता है जिसको हम ऑडिटिंग कहते हैं। ऑडिटिंग इज़ नॉर्मली डन बाय अ थर्ड पार्टी, जो कि कोई आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई आउटसाइड कंपोनेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। अब तो इंटरनल ऑडिट्स का भी ज़माना आ गया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपना भी एक इंटरनल ऑडिट सिस्टम मेंटेन रखती है, एक ऑडिट डिपार्टमेंट रखती है। ये ऑडिट वालों का काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि जो भी आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, यानी आपने किसी को पेमेंट की है, कहीं से पेमेंट आई है, व्हाटएवर, मतलब जो भी आपके अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं उनको वेरीफाई करना कि अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन ये काम सही हुआ है या गलत हुआ है। अगर कोई आप पेमेंट करते हैं तो क्या उसकी अप्रूवल है, क्या पेमेंट जो है वो मोर देन डिस्क्राइब लिमिट तो नहीं हुई, सही बंदे को पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है, और क्या हमने उसकी बाकायदा जो रिसीट्स हैं, जो उसकी रसीदें वगैरह हैं वो मेंटेन की हैं कि नहीं की हैं।
सो ये सब चीज़ें देखना जो है वो ऑडिटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। अब इसी तरीके से एक ऑडिट का नाम यहाँ पे लिया गया जिसको हम सोशल ऑडिट कहते हैं। ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का तो एक तरह से भी ऑडिट, इसमें सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं, बट सोशल ऑडिट ये है कि जो कुछ प्रैक्टिसेस, जो कुछ काम, जो कोई डिसीजन हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे हैं, क्या वो सोशली साउंड हैं, एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं है। कहीं कोई हम ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि जो सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल समझा जाता हो। फॉर एग्जांपल, क्या हम किसी ऐसी प्रोडक्ट पे काम तो नहीं कर रहे कि जो हो सकता है इन द लेटर रन और एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल ना हो। सो एक सोशल ऑडिट इंटरनली लोगों के आपस में जो एनवायरनमेंट है, उसमें जो लोग एक दूसरे के साथ बिहेवियर है, उसको भी ऑडिट करता है। वो आपकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को भी देख रहा होता है। सो इट हैज़ अ ह्यूज ब्रॉड फोकस, बट इसमें मेनली एक थर्ड पार्टी आपको इवेलुएट करती है कि आपकी डिसीजन मेकिंग बीइंग अ मैनेजर एंड बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन इज सोशली एक्सेप्टेबल और नॉट। सो द 6th पॉइंट इज कि इंडिपेंडेंट का मतलब है बाहर से, कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जिसका ताल्लुक ना हो। कंडक्ट एंड इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट, किसी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करके तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सोशल ऑडिट करवाना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आपके यहाँ जो प्रैक्टिसेस हैं वो एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेबल हैं या नहीं हैं। 7th पॉइंट इज दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल्स फेसिंग एथिकल डायलेमास। देखें, अक्सर ऐसा होता है कि एक मैनेजर जो है उसने एक एथिकल डिसीजन लिया, लेकिन सुपीरियर्स जो हैं उसके, जो उसका इमीडिएट बॉस है, इमीडिएट सुपीरियर है, उसने उसके मुताबिक वो डिसीजन नहीं है, हालांकि जो मैनेजर ने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल एथिकल है। सो जनरली क्या होता है कि आपका टॉप बॉस जो है वो आपसे नाराज़ हो जाएगा और आप बीइंग अ मैनेजर परेशानी में आ जाएंगे, और आपको हो सकता है एक्स्ट्रा काम दे दिया जाए, या ट्रांसफ़र के इश्यूज़ आ जाएंगे, या इवन जॉब से आपको निकालने का एक सिचुएशन आ जाए। तो हमेशा हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट बिल्ड करना चाहिए जहाँ पे अगर कोई मैनेजर एक एथिकल डायलेमा में फंस जाए, इशू में फंस जाए, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए कि भाई इस मैनेजर ने एक अच्छा डिसीजन लिया है, और अगर कोई लोग इसके ख़िलाफ़ हो गए ऑर्गेनाइजेशन में तो इसको हमें इस प्रेशर से बचाना चाहिए। और यही एक ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन की निशानी होती है कि जहाँ पे आप अपने वर्कर्स को, मैनेजर्स को सपोर्ट करें कि वो अच्छे डिसीजन लें, साउंड डिसीजन लें, लेकिन अगर प्रेशर उन पे आए तो फिर प्रेशर के लिए फिर सबको एक दूसरे की सपोर्ट भी करनी चाहिए। So that is what the point 7 is saying, that we need to provide support for individuals who are facing ethical dilemmas। और अगर कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए जहाँ पे मैनेजर जो है वो ये डिसाइड करने में हिचकिचा रहा है या परेशानी में है कि ये डिसीजन जो वो ले रहा है वो एथिकल है या अनएथिकल है, तो उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए, उसको मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि वो एक अच्छा डिसीजन करे, वो प्रेशर ना बाहर से ज़्यादा ले सके या टॉप बॉस उसको प्रेशराइज ना कर सके, और वो फिर अपनी सोच के मुताबिक, अपनी मॉरल डेवलपमेंट के मुताबिक, अपने मॉडरेटर्स जो हमने डिस्कस किए थे उनको सामने रखे, तो फिर कोई एथिकल या अनएथिकल जो भी डिसीजन उसने लेना है, जो कि बाद में प्रूव होगा, बट ऐसा डिसीजन ले जो कि एक्सेप्टेबल हो, एथिकल हो, और उसको जो है वो प्रेशराइज ना किया गया हो। द नेक्स्ट डिस्कशन इज अबाउट कोड ऑफ एथिक्स। मैंने कहा था कि कोड ऑफ एथिक्स जो है एक कोड है, एक समरी है, एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होती है जो कि रिटन होती है, और इसमें ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट पॉइंट्स को, डिफरेंट एथिकल इश्यूज़ को मेंशन किया होता है कि हमारे नज़दीक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है और क्या चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इसको सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस में एक जगह पे लगा देना है कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है, बल्कि मैंने कहा जैसे कि टाइम टू टाइम हमें अपने एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग भी देना चाहिए, उनको हमें इसके मुतालिक अवेयरनेस भी क्रिएट करनी चाहिए कि जी ये कोड ऑफ एथिक्स है, इसमें ये चीज़ का मतलब ये है,
और फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक कॉमन होनी चाहिए, यानी हर एक को पता होना चाहिए कि जी अगर ये लिखा गया है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस साउंड होनी चाहिए तो इसका क्या मतलब है। सो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस साउंड होने का मतलब ये है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, अकाउंटिंग के जो मेथड्स हैं, जो अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो किया जाना चाहिए और फिर उसी तरीके से बुक्स मेंटेन की जानी चाहिए और फिर उनका ऑडिट होना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। बट कोड ऑफ एथिक्स क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक रिटन एक समरी पॉइंट्स होते हैं जिसमें ब्रीफली डिस्कस ये किया जाता है कि what things are considered to be ethical in the organization and what are unethical, and that must be displayed at a common point जहाँ पे लोग जो हैं गुजरें, देखें, पढ़ें और फिर टाइम टू टाइम उससे रिलेटेड हमें ट्रेनिंग्स भी देनी चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द कोड ऑफ एथिक्स। इसके 3 क्लस्टर्स होंगे, यानी इसके 3 ग्रुप्स होंगे जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दे आर क्लस्टर 1, 2 एंड 3। और क्लस्टर 1 क्या है? क्लस्टर 1 इज अबाउट बी अ डिपेंडेबल ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजन, कि ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा सिटीजन बनना, यानी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा एक पर्सन बनना कि जिस पे डिपेंड किया जा सके। यानी जब कभी भी वो बेशक ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के अंदर है या कुछ अरसे के लिए कहीं बाहर किसी असाइनमेंट पे है या इवन शाम को अपने घर चला गया है तो उसकी जो भी वे ऑफ डूइंग है, जो भी उसका वे ऑफ लिविंग है या जो भी उसका वे ऑफ डीलिंग है लोगों के साथ, वो स्टिल उसी पैरामीटर्स में रहना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, बिकॉज वो जहाँ भी है ही इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग हिज और हर ऑर्गेनाइजेशन। सो हम ये कहते हैं कि व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लस्टर 1, वी नीड टू मेक श्योर दैट द person is a dependable person, he is a citizen, dependable citizen of the organization, यानी कि उस पर हम डिपेंड कर सकें even though that person is inside the organization or not. So the first point is comply with safety, health and security regulations. आप एक डिपेंडेबल ऑर्गेनाइजेशन मेंबर कैसे बन सकते हैं? पॉइंट नंबर 1 सेज कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो आपके लिए या जो हेल्थ कोड बनाए हुए हैं या जो सिक्योरिटी कोड्स बनाए हुए हैं या जो सेफ्टी कोड्स बनाए हुए हैं उसको आप फॉलो कर रहे हैं। अब मैं फॉर इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल सेफ्टी कोड ये है कि लेट से आपसे कहा जाता है कि जी चूँकि यहाँ पे आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या प्रोडक्शन भी होती है चीज़ों की, तो आपको हर वक्त जो है वो हेलमेट पहन के रखनी है और आपने जो है आंखों के ऊपर ये ग्लासेस पहन के रखने हैं। और सो योर सेफ्टी इज़ बेसिकली द सेफ्टी फॉर अदर्स ऑल्सो। सो आपने अगर आप उन सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और लिखा हुआ है कि जी अगर आपको अपने इस एरिया के अंदर कोई चीज़ जलानी नहीं है, कोई मैच स्टिक यूज़ नहीं करनी है, प्रॉपरली आपने अपने कंप्यूटर्स को ऑफ करके जाना है डेली जब भी आप उसको यूज़ ना कर रहे हो, ताकि बाद में आपके बाद जब शाम को ऑफिस ऑफ हो जाए तो कोई शॉर्ट सर्किट या कोई ऐसा इशू ना हो। तो ये सारे सेफ्टी रेगुलेशंस हैं और हमें एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर की तरह इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि हमारी ये सोच हो कि हम इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बड़ा फ़र्क पड़ता है क्योंकि हमारी सिक्योरिटी जो है, अगर हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो फिर उसका पॉजिटिव इफेक्ट दूसरों पे होगा। और लेट्स से अगर कोई दूसरा नहीं फॉलो करता और आप कहते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो कोई दूसरा ना फॉलो करे और हो सकता है कि इसका कोई फायर लग जाए या कोई ऐसा इशू हो जाए तो उसकी नज़र आप भी आ सकते हैं। सो वी नीड टू बी एट अ कॉमन पॉइंट। हमें जो भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंडीशंस दी गई उनको फॉलो करना चाहिए। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? अगर हमें कहा गया है कि जी वी नीड टू लॉक आवर ऑफिसेज व्हेनेवर वी आर नॉट देयर, हमें करना चाहिए। अगर हमें कहा जाता है कि व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू द यूनिवर्सिटी और मे बी इन द कैंपस, तो हमें अपना स्टूडेंट कार्ड जो है वो डिस्प्ले करना चाहिए, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आउटसाइडर्स आएँ और कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें।
So that these are also, फिर at the same time there are some health issues which are always important. For example, ये कहा जाता है कि जी अगर फॉर एग्जांपल अगर एक आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई पोल्यूटेंट्स हैं या कोई और इश्यूज हैं, तो आपको कहा जाता है जी आपने फेस मास्क पहन के रखना है. दैट इज़ अ थिंग. अगर नो स्मोकिंग जोन है और आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी बात है. सो कहने का मकसद ये है, द फर्स्ट पॉइंट सेज that we need to show that we are a dependable organization member. और जहाँ कहीं हम होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे, स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात अभी हो रही है, तो हम जो हेल्थ रेगुलेशंस हैं या जो सेफ्टी रेगुलेशंस हैं या जो सिक्योरिटी के रूल्स बनाए गए हैं हम उसको फॉलो करें. पॉइंट 2 इज डेमोन्स्ट्रेट कर्टेसी, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी एंड फेयरनेस. 4 चीज़ें हैं. कर्टिसी ये है कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बात करें, कर्टियस हों. अगर हमारे से कोई जूनियर है तो उससे भी अच्छे तरीके से बात करें. अब लाजमी नहीं है कि हम मैनेजर हैं तो हमसे जो जूनियर मैनेजर है हमसे मैनेजर से ही बात करें, नहीं. नॉन मैनेजरियल स्टाफ है उससे भी अच्छे तरीके से बात करें, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त ग्रो करती है जब सारे अपना हिस्सा डाल रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में. सो एवरीवन इज इम्पॉर्टेंट, वेदर इज अ मैनेजरियल पर्सन, इज अ नॉन मैनेजरियल और मे बी अ स्टाफ पोजीशन पर्सन. और फिर कर्टियस होना तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है. आप किसी के साथ अच्छे तरीके से बात करेंगे तो अगला भी आपसे अच्छे तरीके से ही बात करेगा. और मैंने तो खुद पर्सनली, मेरा अपना एक एनालिसिस है कि अगले को जितना मर्जी गुस्सा आ जाए, अगर आप उससे अच्छे तरीके से बात कर रहे हो, बेशक गलती आपकी है या नहीं है, तो अगला जो है वो खुद ब खुद अपना गुस्सा भूल जाएगा और कहेगा कि भाई ये तो मेरे से बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर रहा है. कर्टियस होना चाहिए आपको, ऑनेस्ट होना चाहिए, सच बोलना चाहिए. और ये तो हमारा मज़हब भी कहता है कि वी नीड टू ऑलवेज टॉक वट एवर इट इज़ राइट. तो सच बोलना चाहिए. और सच देखें, सच जो है वो आपको 1000 झूठ से बचा लेता है. जो आपने एक झूठ बोल के फिर उसको सेफ करने के लिए और झूठ बोलने हैं. सो एथिकल क्या है कि आप कर्टियस हों, एथिकल है कि आप ऑनेस्ट हों, सच बोलें और हमेशा सच जो बात है उसी को आगे कन्वे करें. रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने शुरू में कहा रिस्पेक्ट, हर शख्स की रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए, वो आपसे बड़ा है, वो आपसे छोटा है. बिकॉज व्हेन यू रिस्पेक्ट अदर्स ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट यू. सो आप रिस्पेक्ट उस वक्त तक डिमांड नहीं कर सकते जब तक आप किसी को रिस्पेक्ट ना दें. सो व्हेन यू रिस्पेक्ट अदर्स देन यू कैन एक्सपेक्ट कि अगले भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे. एंड देन फेयरनेस. यू सी फेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इवन आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, आप इररिस्पेक्टिव, इम्पर्सनल होके, हमने शुरू में किसी चैप्टर में इम्पर्सनैलिटी की भी बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशंस में इम्पर्सनैलिटी होनी चाहिए. हमें पर्सनैलिटीज़ को देख के डिसीजन नहीं करना चाहिए, हमें डिसीजन जो है उसको देखना चाहिए कि वो सही है कि गलत है. नंबर 3 पॉइंट इज इलीगल ड्रग्स, स्मोकिंग एट वर्क प्लेस आर प्रोहिबिटेड. अब अगर ऑब्वियसली इट्स प्रोहिबिटेड कि आप इलीगल ड्रग्स यानी ऐसी चीज़ें जो कि इलीगल हैं और जो कि ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं. इलीगल ड्रग्स का मतलब है वो ड्रग्स जो कि इलीगल हों. अब ड्रग्स मेडिसिन्स को भी बोला जाता है, बट दीज आर टू सम एक्सटेंट आर नॉट इलीगल. लेकिन इलीगल ड्रग्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट इज़ प्रोहिबिटेड. स्मोकिंग अगर आपके वर्क प्लेस पे प्रोहिबिटेड है तो उससे भी आपको बचना चाहिए, because these things are not allowed at any point. Maybe it's harmful for you, it's harmful for others also. Point number 4 is manage personal finances well. आपके ज़िम्मे जो फाइनेंसेस को मैनेज करने की जिम्मेदारी है, या आपके अपने जो अंडर, मैं इस वक्त पर्सनल फाइनेंसेस को थोड़ा सा यहाँ पे एक डिफरेंट डायमेंशन दे रहा हूँ. यहाँ पे उन फाइनेंसेस से मतलब नहीं है जो आपकी अपनी तनख्वाह है, जो आपके अपने अकाउंट्स हैं. यहाँ पे उन अकाउंट्स की बात हो रही है जो ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी ज़िम्मेदारी में दिए हुए हैं, जिनको मैनेज करना आपकी ज़िम्मेदारी है. सो एक वो पेटी कैश भी हो सकता है जिसमें आपको ऑफिस का छोटा मोटा खर्चा या चाय पानी चलाने के लिए कुछ पैसे दिए गए हैं. उसमें भी अगर आप 1-1 रुपये का हिसाब मेंटेन कर रहे हैं तो दैट्स अ गुड प्रैक्टिस, दैट शुड बी देयर.
or it could be deciding upon a project which has a cost of 10 million rupees. So 1 रुपया हो या 10 million हो, if they have been given under your मैनेजमेंट, तो फिर उसको आपको प्रॉपर अकाउंटिंग प्रोसीजर्स या प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए और उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. बिकॉज अगर आप कहें कि जी 1 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है, सो इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट समथिंग विच इज़ अ रॉन्ग डूइंग. कि अगर एक चीज़ एक पैसे की भी अगर आगे पीछे हो जाए तो दैट इज़ एन इशू. और क्या पॉइंट्स आ रहे हैं इसके अंदर? पॉइंट नंबर 5 इज वी नीड टू एग्जिबिट गुड अटेंडेंस एंड रेगुलरिटी. कमिंग टू द ऑफिस एट टाइम, बीइंग देयर एट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू मे से कि जी मैं अगर मेरा ऑफिस 8 बजे है तो लोग आते ही 9 बजे हैं, मैं पहले पहुंच जाता हूं. लोग समझते हैं पता नहीं ये जो है ये इसको ऑफिस आने की ज़्यादा जल्दी होती है. बट दैट डजंट मीन, इट ऑल्सो रिक्वायर्स ऑल्सो कि अगर 4 o'clock आपका ऑफिस ख़त्म हो रहा है देन यू शुड ऑल्सो बी लिविंग एट 4 देन. अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो कहते हैं कि जी काम नहीं ख़त्म हुआ. And you see, I've seen, I've worked for some time and I've seen people in other parts of the world also, that if they are coming to 9 o'clock in the office and they are leaving at 5, they make sure कि उस दिन का जो वो काम है वो ऑफिस में इस टाइम ड्यूरेशन में वो ख़त्म कर लें. Although there are some different cultures also, such as in Japanese culture, they say that the work should end and how much it takes doesn't matter. कि वो काम ख़त्म होना चाहिए, टाइम जितना मर्जी लग जाए. हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि काम ख़त्म होना चाहिए, बट द पॉइंट इज़ दैट अ बेस्ट मैनेजर इज़ अ वन कि जो अपने काम को मैनेज कर ले. आपको टास्क दी गई है कि ये काम मुकम्मल होना चाहिए, देन यू शुड, इफ़ यू आर अ गुड मैनेजर, तो आप उस टास्क को इस तरह मैनेज करें कि वो आपके जो ऑफिस टाइमिंग्स है उसके अंदर कंप्लीट हो जाए. और इस चीज़ को करने के लिए फिर आपको ऑफिस टाइमिंग्स में टाइम पे आना भी पड़ेगा. ये नहीं है कि आप 2-3 घंटे ऑफिस टाइमिंग्स शुरू होने के बाद आ रहे हैं और फिर 2-3 घंटे लेट बैठे हैं, आपकी वजह से फिर आपके सबॉर्डिनेट्स को भी बैठना पड़ रहा है. ठीक है, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस. सो द पॉइंट सेज दैट वी नीड टू शो गुड अटेंडेंस. हमें जो अटेंडेंस है उसको मेंटेन करना चाहिए, टाइम पे ऑफिस आना चाहिए. जितनी अगर छुट्टियां अलाउड हैं तो वो ले लेनी चाहिए. लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप एक्स्ट्रा छुट्टियां कर रहे हैं, दैट डजंट शो, और विदाउट एनी गिविंग एनी रिटन एप्लीकेशन और मैसेज अगर आप छुट्टी कर रहे हैं तो दैट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट. सो एथिक्स रिक्वायर्स के यू विल बी अ डिपेंडेबल ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर. हर एक को पता चल जाएगा कि यू आर ऑलवेज ऑन टाइम, यू स्टे इन द ऑफिस टिल द नॉर्मल आवर्स जो कि आपसे एक्सपेक्टेड है, एंड यू कंप्लीट योर वर्क. और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो छुट्टियां नहीं करते. सो द ऑर्गेनाइजेशन विल कंसिडर यू आर डिपेंडेबल सिटीजन और मेंबर. पॉइंट नंबर 6 इज फॉलो डायरेक्टिव्स ऑफ सुपरवाइजर्स और सुपीरियर्स. यानी आपका जो भी सुपीरियर है या सुपरवाइजर है, आप उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं. अब अगेन क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर आप अनलेस एंड अनटिल की कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी डिस्कशन आ जाए जहाँ पे अब आप ये डिसाइड ना कर पा रहे हो कि सुपरवाइज़र जो आपसे कह रहा है वो अनएथिकल है या एथिकल है. जनरली सुपरवाइज़र जो होते हैं या सुपीरियर होते हैं वो भी आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम वही काम करने को कहेंगे जो एथिकल है. लेकिन अगर आप उनके ऑर्डर्स को फॉलो ना करें और आप जो है हर चीज़ में कहे कि ये मैं कल कर दूंगा, ये मैं आज नहीं कर सकता, ये यूँ नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता, सो देन यू वोंट बी अ डिपेंडेबल सिटीज़न और मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एक डिपेंडेबल मेंबर और सिटीज़न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो होता है कि उसको जो भी काम कहा जाए वो उस पर फौरी तौर पे काम करना शुरू कर दें. पॉइंट नंबर 8 इज ड्रेस इन बिजनेस अटायर. अटायर मीन्स दैट whatever is considered to be normal, whatever is considered to be what you can call it as it's not casual, rather it's more of a formal or acceptable. So
वी नीड टू ऑलवेज ड्रेस इन अ पॉजिटिव मैनर। हमें अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े और ऐसा फैशन फॉलो नहीं करना चाहिए विच इज़ वेरी ऑड, बिकॉज बीइंग अ मैनेजर we are representing not only our organization but we also are representing we are acting as a symbol for our juniors also. So attire, अगर जुमा है तो आप शलवार कमीज पहने, ऊपर आप वेस्ट कोट पहन लें, that looks more decent. अब अगेन अगर आप शलवार कमीज बहुत ही जो है वो कढ़ाई वाला और इस किस्म का चमकता चमकीला पहन लेंगे तो मना तो नहीं है, बट डजंट लुक नाइस। बट एट द सेम टाइम अगर आप बाकी दिनों में है, आपकी मीटिंग है, आप कैजुअली जीन्स पहन के चले जाते हैं, सो यू नीड टू शो टू अदर्स दैट आई एम, बिकॉज आपका ड्रेस जो है वो आपकी पर्सनैलिटी के कई चीज़ें जो है वो कन्वे कर रहा होता है। बिकॉज इफ़ यू आर ड्रेस्ड इन आपने अच्छा शेव किया हुआ है, आपने अच्छे बाल बनाए हुए हैं, आप अच्छे तरीके से आपने जो है ड्रेसअप हुए हुए, आपके क्लोथ जो है वो प्रेस्ड हैं, इसका मतलब है यू कंसिडर योर जॉब वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर आप जो है, और दैट शोज कि फिर इसका मतलब है आप जो काम करते हैं उसमें भी आप इसी तरीके से तवज्जो देते हैं, अलर्ट रहते हैं। बट अगर आप कैजुअली विद शेव बड़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, जीन पहनी हुई है, आप यू आर और आप ऑफिस तो आ रहे हैं, बट दैट शोज दैट you are not managing even yourself, so how you can manage the organization? अगर आप अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते, आप कहें कि जी मैं तो लेट हो रहा था, मुझे नहीं पता चला, मैं जल्दी में आ गया हूँ, but that means कि you are not managing your personal time, तो आप organizational time को किस तरह मैनेज कर पाओगे? So a good dressing tells many things about your personality, और at the same time आप अपनी personality की कई चीज़ें good dressing से छुपा भी सकते हैं। So that is all about it. And then point number 9 is obviously firearms are not acceptable at any workplace. मतलब असला जो है वो तो स्वाय पुलिस स्टेशन में या बाकी जगहों के बाकी कोई वर्क प्लेस पे एक्सेप्टेबल नहीं होता। So that we need to keep these things in mind। आप कहो कि नहीं जी चाकू रखने से क्या होता है, so हर चीज़ मना है। We to talk about any firearms are prohibited because nowadays security is also a big concern for all the organizations. So organizations बड़ी हो छोटी हो, the security personnel होते हैं और फिर उनके लिए एक प्रॉब्लम होता है कि वो आप so firearms हो जाए, illegal drugs हो जाए, smoking in the workplace हो जाए, any other security hazard, any other health hazard, any other safety hazard, हमें इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। Because we want to show to others that we are a dependable organizational citizen. Now the cluster number 2, मैंने कहा 3 क्लस्टर्स की हम डिस्कशन करेंगे कोड ऑफ एथिक्स में। पहला क्लस्टर था कि एक ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर जो है वो कैसे एक डिपेंडेबल ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर बन सकता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा बिहेवियर हो कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन ने को कोई काम हो वो कहे कि नहीं ये बंदा जो है, ये शख्स जो है, ये जो मैनेजर है, ये इस पे हम इसको काम देते हैं, हमेशा अच्छा काम करता है, सही काम करता है और कोई गलत काम नहीं करता। तो वो हमने 9 पॉइंट्स डिस्कस किए। अब नाउ वी टॉकिंग अबाउट क्लस्टर नंबर 2, और क्लस्टर नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि वी डू नॉट डू एनीथिंग अनलॉफुल और इम्प्रॉपर दैट विल हार्म द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम थोड़ा सा ब्रॉड बात करें कि बीइंग अ मैनेजर वी शुड नॉट डू एनीथिंग दैट हार्म्स द ओवरऑल इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई ऐसा काम नहीं हमें करना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन का इमेज, ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टैंडिंग है इन द सोसाइटी, इन द ओवरऑल इंडस्ट्री, वो उस पर इफेक्ट कोई बात आए या कोई हरफ आए। So there are few points over here. For example, point number 1 is conduct businesses in compliance with all laws. So हमें being a manager ऐसे काम करना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए कि which are according to law, यानी जो लॉ है किसी भी चीज़। फॉर एग्जाम्पल अगर टैक्स का है कि जी जून में फ़लाँ तारीख को आपने अपने टैक्स रिटर्न्स जमा करवाने हैं, तो वी शुड डू इट, इट्स अ लॉ, इट्स अ रिक्वायरमेंट।
और अगर आप कहें कि नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, महीने बाद करवा देंगे या नहीं करवाएंगे, पैसे बच जाते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, देन दीज आर अनलॉफुल प्रैक्टिसेस। बिकॉज अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई थी कि आपने टैक्स रिटर्न्स प्रिपेयर करके जमा करवाने, और आप जो है वो नहीं करते हैं, तो आपके इस काम की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हर्फ आएगा। लोग कहेंगे, या आपको एक फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू की तरफ से, आपको FBI की तरफ से कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कोई लेटर आ जाता है, कोई रिकवरी की टीम आपके आ जाती है। सो दैट इज़ वेरी बैड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। आपका एक छोटा सा स्टेप ऑर्गेनाइजेशन की बदनामी का बायस बन जाता है। एंड दैट इज़ एट द सेम टाइम कोई आपका एक अच्छा स्टेप जो है वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेक नामी एक गुड थिंग बना देता है, गुड स्टेटस क्रिएट करता है, गुड इमेज क्रिएट करता है। सो द पॉइंट नंबर 1 इज वी नीड टू बीइंग अ मैनेजर, वी नीड टू डू ऑल दोज थिंग्स, वी नीड टू डू ऑल अवर बिजनेस डीलिंग्स अकॉर्डिंग टू द लॉ। लॉ के मुताबिक चलना चाहिए, एंड लॉ हैज अ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। पॉइंट नंबर 2, पेमेंट्स फॉर अनलॉफुल purposes आर प्रोहिबिटेड। पेमेंट्स फॉर अनलॉफुल पर्पसेस क्या है कि अगरचे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बेहतर समझ रहे हैं, और आप किसी को बाहर से कोई प्रोजेक्ट लेना चाह रहे हैं, और आप उनको कोई रिश्वत देते हैं, कोई कमीशन देते हैं, कोई अनफेयर बेनिफिट दे देते हैं, इट मे बी एनीथिंग विच कैन बी मॉनेटरी मेनली, बट आप उसको पेमेंट देते हैं कोई कमीशन के तौर पे, सो दैट इज़ अनलॉफुल। अगरचे आप ये समझते हैं इससे मेरी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा फ़ायदा हुआ है, बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है, बड़ा काम मिल गया है, बट एट द एंड ऑफ द डे मे बी कुछ अर्से नया पता चले, लेकिन कहीं ना कहीं जब ऑडिट होगा तो ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। सो इफ़ यू आर मेकिंग सम पेमेंट्स इवन फॉर द बेनिफिट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन बट दीज पेमेंट्स आर नॉट अलाउड, तो जो चीज़ अलाउड नहीं है, जो चीज़ गलत है वो गलत ही है। अगर झूठ बोलना गलत है तो गलत है। आप ये कहें कि नहीं इससे मेरा नुकसान नहीं हुआ तो ये झूठ नहीं है, तो गलत चीज़ गलत है, एंड वी नीड रॉन्ग डूइंग्स आर रॉन्ग डूइंग्स एंड वी नीड टू अवॉइड देम। और पेमेंट्स स्पेशली विच आर बीइंग गिवन फॉर सम अनलॉफुल रीज़न, फॉर अनलॉफुल कॉज, आर ऑब्वियसली नॉट अलाउड, दे आर बैंड, दे आर नॉट रिक्वायर्ड। The third point is also very similar to the second one. Bribes are prohibited. रिश्वत देना मना है, और हमारा रिलीजन भी यही कहता है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जो हैं वो जहन्नमी हैं। So bribes are prohibited. Again मैं इस चीज़ पे एम्फसाइज कर रहा हूँ कि आप एक दफ़ा इस प्रोसेस में शामिल हो जाएंगे, गलत कामों में शामिल हो जाएंगे, तो फिर आपका इनमें से निकलना इम्पॉसिबल है। एक झूठ बोलने के बाद 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं। हाँ, एक सच बोलने से, एक अच्छी दफ़ा एक अच्छे कॉज के लिए स्टैंड लेने पे हो सकता है कुछ लोग आपके अगेंस्ट हो जाएं, लेकिन फिर आप हमेशा के लिए उस चक्कर में से निकल जाएंगे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको किसी न किसी स्टेज पे फौरी तौर पे आपको लगेगा कि शायद ऑर्गेनाइजेशन ही आपके अगेंस्ट हो रही है, लेकिन हमेशा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उन लोगों को अच्छा स्टेचर पे लेके आती है, उनको प्रमोशंस देती है, उनको अच्छा समझती है कि जो सच बोलते हैं और प्रिंसिपल स्टैंड लेते हैं। सो अगर आप प्रिंसिपल स्टैंड लेंगे, ब्राइब्स या रिश्वत या इन किस्म की चीज़ों से बचेंगे और किसी को नहीं देंगे, तो दैट यू आर गिविंग अ गुड इमेज टू योर ऑर्गेनाइजेशन, और बाकी बाहर के लोग भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक अच्छा समझेंगे। So the point number 3 is that the bribes are prohibited. रिश्वत देना मना है। और point number 4 is then avoid outside activities that impair duties. ऐसे काम बाहर निकल के या बाहर की जगहों पे, बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस में, बाहर की प्लेटफॉर्म्स पे नहीं करने चाहिए कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स से जिनका कोलिजन हो। यानी इम्पेयर का मतलब है कि मैच ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बाहर निकल के तो किसी जगह मेरा कोई
किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और मैं जो है वो या लड़ पड़ता हूँ लोगों से, या तो कोई ऐसा रीज़न होती है तो फ़ौरन ही कहेंगे, आप पता चलेगा जी मैं फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, कहेंगे कि इट्स अ बैड थिंग कि इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे शख्स को रखा हुआ है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एट द सेम टाइम इट कैन ऑल्सो बी समथिंग कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ऐसा कल्चर को प्रमोट करती है जहाँ पे हम मिलजुल के सोसाइटल बेनिफिट के लिए भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और हम जो है इन्वायरमेंट रिलेटेड हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। और मैं ख़ुद कोई बाहर ऐसा काम करता हूँ जहाँ पे जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, या मैं खुद जो है वो बाहर पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग करता हुआ आपको नज़र आता हूँ, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। सो हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। किसी काम में अपने आप को इन्वॉल्व करने से पहले सोचना चाहिए कि क्या ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन की एथिक्स से मिसमैच तो नहीं है, कि मैं अगर बाहर को मैंने जैसे शुरू में कहा कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हूँ या बाहर हूँ, सो वी नीड टू शो दैट वी आर ऑल एट द सेम लेवल। हमें जो हमारा बिहेवियर रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसी चीज़ को तकरीबन हमें बाहर फॉलो करना चाहिए। अच्छी चीज़ें हमें लोगों के सामने लानी चाहिए, अच्छे तरीके से लोगों से बाहर भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम बाहर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्बेसडर्स होते हैं। हम बाहर जब भी होंगे लोगों को भी पता होता है ये किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। अगर मैं अच्छे तरीके से लोगों से मिलूँगा, अच्छे तरीके से बात करूँगा, अच्छे काम करूँगा, तो ये इनडायरेक्टली मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक अच्छा मैसेज क्रिएट होगा। और अगर मैं बाहर कोई गलत काम करूँगा तो वो भी फिर एट लार्ज एट द एंड मेरी ऑर्गेनाइजेशन की बदनामी का बायस बन सकता है। So that is what the point 4 is, that we need to make sure that our outside activities should not mismatch with our organizational duties। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटीज़ के साथ मिसमैच नहीं करना चाहिए। जो भी हम बाहर काम करें वो भी इन लाइन विद दी ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स होने चाहिए। Continuing with cluster number 2, point number 5 is that we need to maintain confidentiality of records। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कि आपके ज़िम्मे जो चीज़ लगाई गई है, जो आपके पास रिकॉर्ड है, वो कॉन्फिडेंशियल है। उसको अगर कहा गया है कि इसको किसी को नहीं बताना, किसी को कन्वे नहीं करना, तो आपने बाहर, स्पेशली बाहर या इवन ऑर्गेनाइजेशन में अगर कहा गया कि आपने किसी से ये चीज़ डिस्कस नहीं करनी, सो वी शुड अबाइड दैट, वी शुड स्टिक विद दैट। हमें ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड इश्यूज़ पे बाहर निकल के बाहर लोगों की इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करनी चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कि आपको स्पोक्स पर्सन बनाया गया है। और स्पोक्स पर्सन वो होता है जिसको एक किसी इशू पे बात करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन खुद कहती है कि जी आपने इस इशू पे हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या अपने आइडिया को जो है वो डिफेंड करना है, प्रेजेंट करना है। और अगर हम अपने रिकॉर्ड्स को विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सुपीरियर्स और द टॉप मैनेजमेंट पब्लिसाइज कर देते हैं, लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं, लोगों को रिकॉर्ड दे देते हैं, दैट इज़ इलीगल। और आपने इवन कोई भी इंफॉर्मेशन हो, बेसिक रीज़न हो, वर्बल हो और या रिटन हो, आउटसाइड्स में शेयर करनी है, वी नीड टू गेट अ फॉर्मल परमिशन फॉर इट। पॉइंट नंबर 6 इज वी नीड टू कंप्लाई विद ऑल एंटी ट्रस्ट एंड ट्रेड रेगुलेशंस। हमें तमाम ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना नहीं चाहिए जो कि एंटी ट्रस्ट हो यानी और एंटी ट्रेड हो, जो ट्रेड के लॉज के अगेंस्ट हो। वी नीड टू अवॉइड दोज थिंग्स। और हमें ऐसे ही कामों में हिस्सा लेना चाहिए, ऐसी ही प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए विच आर लीगल। इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कहें कि जी अगर हम अपनी शिपमेंट के ऊपर गलत लिख दें कि जी इसमें इतना सामान है तो हमें इतने पैसों की बचत हो जाएगी, दैट इज़ इलीगल। सो ओवरऑल ऐसी प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना चाहिए जो कि इलीगल हो और आपके ओवरऑल ट्रस्ट को ऑर्गेनाइजेशन के विद इट्स एनवायरनमेंट जो है उसको डैमेज करें।
Point 7 is comply with all accounting procedures and rules and controls. अगर ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो करवाना चाहिए ऑडिट. अगर रिक्वायर्ड है बाय लॉ बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करना चाहिए, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको हायर करना पड़ेगा, वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करेगा. तो दीज आर सम कंट्रोल मेजर्स. और अगर ये लॉ में है कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्वार्टरली यानी एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ पब्लिसाइज करनी है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं जैसे स्टेट बैंक है या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इनको भिजवानी है, तो फिर आपने उनको भिजवानी है. सो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में क्या मुराद है यहाँ पे कि लेट से कहा यह गया है कि ये चीज़ जो है इसमें आपने इसको इस तरह लिखना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यानी अगर ये क्रेडिट है तो इसको क्रेडिट ही मेंशन करना है, ये चीज़ डेबिट हो रही है तो इसको डेबिट ही लिखना है, और इसका प्रॉपर आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है. तो आपको उन्हीं लॉज को, बिकॉज यूनिवर्सली एक ही किस्म के लॉज फॉलो किए जाते हैं पाकिस्तान में, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, इसके अलावा भी रूल्स हैं, अमेंडेड लॉज भी हैं. तो जो भी अमेंडमेंट आए, जो भी अकाउंटिंग रिलेटेड चीज़ें चेंज हों अमेंड हों, हमें उसको फॉलो करना चाहिए. और ये नहीं है कि ऐसा काम करें कि हम कहें कि हम इसको इस तरह लिख देते हैं तो हमारे जो है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के पैसे बच जाएंगे. दैट इज़ रॉन्ग. इफ़ द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस रिक्वायर के अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में ये चीज़ ऐसे रिकॉर्ड होनी है तो फिर उसको ऐसे ही रिकॉर्ड किया जाना चाहिए जैसे कि गवर्नमेंट रूल्स रिक्वायर कर रहे हैं. और फिर ऑडिटिंग है, बाकी कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आपको फॉलो करना चाहिए. पॉइंट नंबर 8 इज डू नॉट यूज कंपनी प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज. अब इसमें बेसिक चीज़ें भी आ जाती हैं. आप कहें कि नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, मैं 2-4 पेंसिल्स और बॉल पॉइंट्स और मार्कर्स घर ले जाता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं घर ऑफिस से प्रिंटिंग पेपर ले जाता हूँ, या गाड़ी ऑफिस की गाड़ी है उसको मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता हूँ, मेरे बच्चे उस पर ड्राइविंग सीख लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है. तो दीज आर ऑल इलीगल थिंग्स. कोई ऑर्गेनाइजेशन जो आपको बेनिफिट्स देती है वो आपको बेनिफिट दे रही है, आपके ओवरऑल पूरी फैमिली को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, इलीगल है. अगर आपको ये इजाज़त दी हुई है कि आप इसको पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फिर तो और बात है. लेकिन अगर वो आपको पर्सनल यूज़ के लिए इस हद तक दी गई है कि जब आप उसमें ट्रैवल कर रहे हो आपका मौजूद होना उस गाड़ी में ज़रूरी है, अगर आप नहीं हैं और आपके बच्चे जो है वो उसके ऊपर ड्राइविंग सीख रहे हैं या सैर कर रहे हैं या शॉपिंग कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दैट. मेंटालिटी जो होती है, जो सोच होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और आप ये कहें कि मुझे पता नहीं था, मैं तो इस तरह ही समझा, तो दैट इज़ वाई ये कहा जा रहा है कि कोड ऑफ एथिक्स जो है उसको आपको पढ़ना चाहिए और उसको समझना भी चाहिए. आप हर चीज़ को समझ लें. अगर आपके पास एक गाड़ी है फॉर पर्सनल यूज़ तो आपको पता होना चाहिए कि इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किन कंडीशंस में मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, किन कंडीशंस में नहीं इस्तेमाल कर सकता. और अगर मेरा उसमें गाड़ी मेरे लिए है तो और मैं अपने बीवी बच्चों के साथ कहीं जा सकता हूँ तो आई शुड बी ड्राइविंग इट. अगर मेरा ड्राइवर ऑफिशियल ड्राइवर इसको ड्राइव कर रहा है तो फिर भी मेरा और बात है. लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपको गाड़ी दी गई है और आप किसी और को यूज़ में दे दें. सो जो भी चीज़, जो भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट या ऑफिस की या ऑर्गेनाइजेशन की आपके ज़िम्मे लगाई गई है या आपको दी गई है, आपको उसका प्रॉपर यूज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन भी पता होने चाहिए. और आप उसको अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल इट इज़ बीन अलाउड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, तो फिर तो और बात है. लेकिन अदरवाइज़ मैंने कहा छोटी छोटी चीज़ें काउंट करती हैं. आप ऑफिस की स्टेशनरी घर के इस्तेमाल के लिए यूज़ करना शुरू कर दें या इस तरह इस्तेमाल कर लें, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड. Continuing with cluster number 2, point number 9 is employees are personally accountable for company funds. शुरू में कहा कि जो भी कंपनी के फंड्स आपके ज़िम्मे लगाए गए हैं, you are personally answerable for them, you are accountable. Accountable means कि उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना और फिर उस रिकॉर्ड को प्रूव करना कि इट्स बीन प्रॉपरली डन इज मेंट बाय वर्ड अकाउंटेबल ओवर हियर. यू आर आंसरेबल, यू आर अकाउंटेबल.
और अकाउंटेबल का वर्ड जब कहीं भी आता है इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है. इट मीन्स नॉट ओनली यू नीड टू मैनेज देम प्रॉपरली, but once they will be under observation, under auditing, you need to prove it that whatever you have done is according to the rules and regulations. So company funds जहाँ जब भी आपके ज़िम्मे होंगे, बेशक वो 1 रुपया है, बेशक वो millions of rupees है, they must be managed properly and you are accountable, you are answerable for them. Do not propagate false or misleading information just for the sake of getting importance in the organization. अगर आप लोगों के साथ बैठ के बातें करना शुरू कर दें, मुझे तो ये बात भी पता है, मुझे तो ये बात भी पता है, और मैं there is a word for it, we call it as grapevine. Grapevine communication is a kind of communication where there are informal channels, और लोग जो है वो इनफॉर्मली एक ग्रुप बना लें और एक दूसरे से इधर की बात उधर कर रहे हैं, और हो सकता है लोग आपको उस वक्त बहुत इन्फॉर्म्ड पर्सन समझें, बट दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग. मिसलीडिंग, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कन्वे करना, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लोगों ऑर्गेनाइजेशन की कन्वे करना is a wrong doing within you are talking about it within the organization or outside. गलत बात कन्वे करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बाहर जो है वो नॉट अलाउड है. पॉइंट नंबर 11 इज मेक डिसीजंस विदाउट रिगार्ड फॉर पर्सनल गेन. डिसीजन हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल गेन के लिए होना चाहिए, लेकिन अगेन इट शुड बी फ्रॉम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू. पर्सनल गेन जो है, पर्सनल फ़ायदे को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए. इट शुड बी ऑर्गेनाइजेशनल गेन, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट के लिए जो भी आप डिसीजन लेंगे वो इम्पॉर्टेंट होगा. पर्सनल गेन जो होता है वो ऑटोमेटिकली साथ साथ होता है. पर्सनल गेन को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए अब एज फार एज ही इन कंपैरिजन टू द ऑर्गेनाइजेशनल गेन. नाउ फाइनली इट्स द क्लस्टर 3 where we'll be talking about the be good to our customers. Remember, organization छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, your focus in every organization has a focus towards its customers. हमें कस्टमर फोकस होना चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में. एज अ मैनेजर हमारा फोकस भी कस्टमर्स होना चाहिए, बिकॉज अगर कस्टमर्स जो है वो आपके खुश हैं आपसे, आपकी प्रोडक्ट से, आपकी सर्विसेज से, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं वो ज़्यादा ख़रीदेंगे और अच्छी जगह बात करेंगे. जब वो किसी के से बात करेंगे आगे और रेफ़र करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन को दूसरों के सामने भी. सो व्हेनेवर योर कस्टमर्स आर हैप्पी, दे आर गोइंग टू मेक योर सेल्स आर गोइंग टू इंक्रीज. आपकी सेल्स बढ़ेगी. जब ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स बढ़ेगी तो फिर उसमें से आपका भी कोई ना कोई फ़ायदा होगा. जब भी ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो करती हैं, ये याद रखिए, हर जो वर्कर है, हर एम्प्लॉय जो है, उसको उसका शेयर किसी ना किसी फॉर्म में मिलता है. ये गलत है कि ऑर्गेनाइजेशंस नहीं देती हैं, हमेशा स्टैंडर्ड प्रोसीजर से चलती हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन बेनिफिट आपको मिलेगा, ये हमेशा याद रखिए. सो फॉर दैट वी नीड टू बी do what we need to be good to our customers. And the point number 1 says convey true claims in product advertisements. झूठ नहीं बोलना चाहिए. अगर आपकी प्रोडक्ट के कोई फीचर्स हैं जो सही हैं, जो ठीक हैं, तो आपको उसको एडवर्टीजमेंट में कन्वे करना चाहिए, क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स जो हैं बेशक वो प्रिंटेड हों या वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे हों या मीडिया पे हो, उसमें जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो रियलिस्टिकली प्रूव होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें कि मैं ये शैम्पू जो है उसमें कहा यह गया है कि इससे बाल लंबे हो जाते हैं. सो हैज़ इट बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड? मैं जो इतना बड़ा क्लेम दे रहा हूँ एडवर्टीजमेंट के ऊपर कि जी ये 3 मीटर आपके जो बाल हैं वो लंबे और हो जाएंगे, तो हैज़ इट बीन प्रूव्ड? तो अगर प्रूव्ड है तो फिर तो कहें. आप कहते हैं कि जी ये डिटर्जेंट यूज़ करने से जो है किसी किस्म के जो स्टेन्स हैं, दाग जो हैं वो धुल जाते हैं. सो हैज़ इट बीन प्रूव्ड? अगर प्रूफ है आपके पास फिर तो ये बात करें. आप फॉल्स क्लेम्स ना करें, बिकॉज फॉल्स क्लेम हो सकता है कि आप टेम्पररी तो अपनी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ा लें, लोग कहें अच्छा ऐसा डिटर्जेंट आ गया है हर किस्म के दाग धो देता है, ट्राई किया जाए. और लेट्स से इट वाज अ फॉल्स क्लेम, और अब पता ही चलता है कि वो ट्राई करने के बाद लोगों ने कहा कि इससे तो कुछ भी नहीं हुआ.
सो अब जो नेगेटिव इमेज क्रिएट होगा वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, ज़्यादा डेविस्टेटिंग है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. So the first point says we need to be loyal to our customers. We don't need to make any false claims. जो आपकी प्रोडक्ट कर रही है, जो आपकी प्रोडक्ट सर्विस ऑफर कर रही है, उसके मुतालिक आपको सच बोलना चाहिए एडवर्टीजमेंट्स में स्पेशली. पॉइंट नंबर 2 is we need to perform assigned duties to the best of your ability. हमें अगर कोई काम दिया गया है लेट्स से कस्टमर से रिलेटेड कि आपने अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना है, आपने उनसे फीडबैक लेना है, या आपने जो है जब भी वो आए उनको उनके साथ कर्टियस होना है. सो वी नीड टू शो दैट whatever we are doing, whatever the duty we have been assigned, we are doing it in a good manner, in a proper way. The next thing is that provide products and services of the highest quality. We should always, being a manager, it is our responsibility towards the customers कि हम अपने customers के लिए हमेशा good quality प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डेवलप करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम उनको अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स देंगे तो वो सेटिस्फाइड होंगे कस्टमर्स, और जब कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो फिर वही चेन आ जाती है जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि सेटिस्फाइड कस्टमर जो होता है वो आगे भी और भी लोगों से आपके मुतालिक अच्छी बात करेगा, आपकी सेल्स बढ़ेगी. जब ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, और जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो उसके इंडिविजुअल मेंबर्स यानी वर्कर्स, मैनेजर्स, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोगों को भी उसका फ़ायदा पहुंचता है. So after looking at the code of ethics के 3 clusters के बाद, let's have a little bit or more discussion on that. What is the effective use of code of ethics? Code of ethics का एक positive effect क्या होता है? Point number 1 is it develops a code of ethics as a guide in handling ethical dilemmas in decision making. जब कभी भी decision making में आपको कोई एथिकल डायलेमा आ जाए जहाँ पे आपको ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही हो कि ये चीज़ एथिकल है या अनएथिकल है, तो कोड ऑफ एथिक्स जो है वो आपके लिए हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाता है जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं. कम्युनिकेट द कोड रेगुलरली टू ऑल एम्प्लॉइज़. आप अगर चाहते हैं कि इसका इफ़ेक्टिव इस्तेमाल हो तो फिर टाइम टू टाइम आपको अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉइज़ को ये कोड ऑफ एथिक्स जो है उनको कन्वे करते रहना चाहिए, अवेयरनेस करनी चाहिए. सिर्फ मैंने जैसे शुरू में कहा कि किसी पब्लिक प्लेस पे या इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन किसी कॉमन एंट्री पॉइंट पे या किसी कॉरिडोर में नोटिस बोर्ड पे लगा देने से सिर्फ मकसद हल नहीं होता. Have all levels of management continually reaffirm the importance of the ethics code and the organization's commitment to the code. Commitment सिर्फ लोअर लेवल ऑफ मैनेजर से रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ मिडिल मैनेजर से रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ नॉन मैनेजरियल स्टाफ से रिक्वायर्ड नहीं है, टॉप मैनेजमेंट भी इसमें शामिल है. सबको एक कमिटमेंट दिखानी चाहिए, सबको एज अ ग्रुप काम करना चाहिए, सबको इस चीज़ को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा जहन में रखना चाहिए कि whenever we need to discuss, whenever we need to decide upon something, हमें एथिकल डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए और हमें कोड ऑफ एथिक्स को रेफर करना चाहिए. पब्लिकली रेप्रीमांड एंड कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन दोज हु ब्रेक द कोड. रेप्रीमांड का मतलब होता है सज़ा देनी चाहिए. अब कोई भी अगर कोड ऑफ एथिक्स को तोड़ता है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कौन है, क्या उससे आपका ताल्लुक़ है, अगर उसने रूल ब्रेक किया है तो उसको सज़ा देनी चाहिए. और पब्लिकली मतलब ये है कि लोगों को कन्वे भी करना चाहिए कि हमने ऐसा किया है, बिकॉज अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपहेल्ड करेंगे तो लोगों का एक अच्छा इमेज हमारे मुतालिक बनेगा. The last thing before we could end up this lecture is the values of ethics training. मैंने कहा था कि एथिक्स रिलेटेड ट्रेनिंग्स पे हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. what these trainings can do for us, it can make a difference in ethical behavior. लोगों देखा जाएगा कि आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि ट्रेनिंग्स के बाद लोगों में अच्छी हैबिट्स डेवलप होती है, आपको नज़र आएंगी. इंक्रीज एम्प्लॉई अवेयरनेस ऑफ एथिकल इश्यूज इन बिजनेस डिसीजन. एम्प्लॉई अवेयर हो जाएंगे कि हमें जब भी कोई डिसीजन लेना है बिजनेस रिलेटेड तो हमें
क्या चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी है, और ज़ाहिरी बात है वो उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देंगे जो कि एथिकल हैं और उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे जो अनएथिकल हैं। डियर स्टूडेंट्स, विद दिस कंक्लूड्स अवर लेक्चर नंबर 12, और कुछ चीज़ें इसमें जो रह गई हैं विल बी कवरिंग दैम इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अल्लाह हाफिज़।